Hello students, I am Dr. Veena Dhari, Associate Professor from Ravindranath Tagore University. Today we are going to discuss about the system performance attributes numericals and multiprocessors. The lecture objectives: students will be able to know the important system performance attributes. Students able to define the terms, MIPS and throughput. They can able to define those terms. They know the different types of multiprocessors. So these are the lecture objectives. After this lecture, students able to know all these things. In previous lecture, I already told about the different system performance attributes. Okay. So here, a tau, it is clock cycle rate, will be measured by nanoseconds. It is equal to 1 by f. F means it is a clock rate. It is a 1 by cycle rate. It will be measured in megahertz or gigahertz. It is the inverse of the cycle rate. Okay. So megahertz means it is denoted by 10 to the power of 6. Gigahertz means, anybody knows it? It will be denoted by 10 to the power of 9. Okay. And cycles per instruction, it is denoted by CPI. In previous lecture, I already explained it. IC is equal to instruction count and T is equal to execution time. Execution time is equal to instruction count. कितने instructions है, एक एक instruction को कितने cycles लगेगा execute करने के लिए. Okay, IC into CPI into and how many clock pulses it will take, yeah, how many cycles it will take per instruction, how many nanoseconds it will take to execute one cycle. That is equal to 1 by f. Okay, so this is the execution time. It will be measured in nanoseconds. Okay, it will be measured in nanoseconds. So these are the different terminology you need to know. One is the tau, it is a cycle rate, will be measured in nanoseconds. Clock rate f, it is inverse of cycle rate, it will be measured in megahertz or gigahertz. And CPI, it is cycles per instruction, how many cycles to execute one instruction. And instruction count, IC, that is equal to total how many instructions are there. T is equal to total instructions into एक instruction को execute करने के लिए कितने cycles चाहिए, that is CPI into एक cycle को execute करने के लिए कितने nanoseconds चाहिए. Okay, so this is the combination of these three. It is called execution time. Okay. So here, see, T is equal to IC into CPI into 1 by f. Okay, this is the first. So it is equal to, here I have taken a capital C, that is equal to IC instruction count into CPI. एक capital C में ले चुके थे. So formula is converted into C into 1 by f, है ना. C में अपन IC into CPI को ले चुके थे. Okay. Suppose if you want to calculate from this formula, if you want to calculate the CPI, so what will happen? And IC will be here, it will be go here. So C by IC, है ना. CPI is equal to, C means what? Total cycles of the particular instruction and total instructions. C is equal to total cycle count of instructions. Okay, IC equal to total instructions, है ना. अपन को CPI calculate करना है तो this formula is important, C by IC, है ना. So this is the first, मतलब T is the first attribute, second C is the second attribute, third attribute is CPI, and fourth attribute is MIPS, million instructions per second. इसको कैसे calculate करेंगे? So total instructions by
t into 10 to the power of 6. So this is the one formula, है ना, एक formula ये है. Suppose अपने पास time है तो we can calculate the MIPS. कभी कभी अपने पास time मिलेगा नहीं है, time की मतलब बाद में calculate करेंगे. Then the alternate formula is equal to t के जगह पर I have substituted this one, है ना, IC into CPI into 1 by F, है ना. So IC by IC into CPI into 1 by F, है ना, 1 by F. Already 10 to the power of 6 यहाँ है, so 10 to the power of 6 is there. So IC will be मतलब ये common है, निकल जाएगा यहाँ से. So F ऊपर चले जाएंगे, so क्या मिलेगा, तो F by CPI into 10 to the power of 6. Okay, so MIPS को कैलकुलेट करने के लिए IC by T into 10 to the power of 6. अगर आपके पास T आप जानते हैं तो MIPS को वैसा कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर if you know the MIPS, then T को जस्ट यहाँ रिप्लेस करिएगा, T is equal to IC by MIPS into 10 to the power of 6. ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा. एंड दूसरे फॉर्मूला MIPS को कैलकुलेट करने के लिए F by CPI into 10 to the power of 6. Okay, these two formulas you need to remember. Okay, न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर द 4 एट्रीब्यूट्स. एंड फिफ्थ एट्रीब्यूट इज थ्रूपुट. ओके, सिस्टम की थ्रूपुट है ना, सिस्टम की थ्रूपुट. टी इज व्हाट, टी इज फॉर टू काउंट द per second how many to execute any program, how many seconds it will कैलकुलेट. ओके, टी इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सेकंड में मतलब अपन को एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने नैनो सेकंड्स की जरूरत पड़ रहे है. ओके, कितने नैनो सेकंड्स की जरूरत पड़ रहे है प्रोग्राम को टू एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम, हाउ मेनी नैनो सेकंड्स, है ना. सो इनवर्स ऑफ टी मींस थ्रूपुट मींस पर सेकंड हाउ मेनी प्रोग्राम्स विल एग्जीक्यूट. डोंट कंफ्यूज, यहाँ पर सेकंड कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहां पर एक सेकंड में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने सेकंड्स की जरूरत है ना. दैट इज टी एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू थ्रूपुट. ओके, सो दीज आर द 5 सिस्टम एट्रीब्यूट्स वी नीड टू नो. And using these 5 system attributes we will calculate some numericals, है ना. एक न्यूमेरिकल्स को देखेंगे. So this is the numerical one. एग्जाम में भी ऐसा दिया जाएगा. कंसिडर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोड विथ 20 नहीं है 2 लाख इंस्ट्रक्शंस ऑन ए 40 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर. ओके, सो 40 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, 40 मेगाहर्ट्ज पे दिया गया, नैनो सेकंड्स में नहीं दिया गया, सो इट इज एफ. ओके, एफ को दिया गया, सो 40 मेगाहर्ट्ज है, सो यहाँ पर एफ है. And object code with 2 lakh instructions. This is instruction count, है ना, total instructions को instruction count कहते हैं. So 2 lakh instructions are there. Okay, but the program consists 4 major types of instructions, है ना. 4 major मतलब parts है program में. So instruction mix and the number of cycles needed for each instruction बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ ए प्रोग्राम, है ना. यहाँ पर दिया गया था अपन को कितने इंस्ट्रक्शन टाइप्स है, वो एक उस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने साइकिल्स चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन मिक्स कितने इंस्ट्रक्शन है, टोटल इंस्ट्रक्शन में इसका अर्थमेटिक लॉजिक का इंस्ट्रक्शन मिक्स कितना है. ओके, सो यहाँ पर दिया गया, सो यहाँ पर कितना दिया गया, 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. And instruction mix का percentage दिया गया 60%. They have given the percentage 60, 18, 12 and 10%. And CPI clock rate, arithmetic logic को execute करने के लिए 1 clock per instruction, cycle per instruction. And load and store के लिए 2 cycles, branch के लिए 4 and memory difference with cache miss के लिए 8 cycles, है ना, क्योंकि miss हो गए ना cache के साथ, इसीलिए इसको ज्यादा चाहिए. So है इस पे 8 इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ रहा है. सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब आपको प्रॉब्लम देने के बाद इसमें 2 क्वेश्चंस दिया गया. कैलकुलेट द एवरेज सीपीआई ऑफ द अबव प्रोग्राम एंड कैलकुलेट द मिप्स. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम. आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, एफ दे दिया वहां पर and already they have given the total instructions, that is instruction count also they have given. Okay, see
instruction count already given, it is 20, मतलब 2 lakhs instructions are there, okay, and f is equal to 40 megahertz है ना, already given. So we need to calculate the average CPI, calculate करना है, okay. CPI का formula क्या है? That is equal to C by IC, okay. C means total cycles of the instructions है ना. So we need to calculate the total cycles of the instructions. पहले total cycles से arithmetic logic mix, इसका percentage कितना है? 60%, okay. So इसको मतलब total instructions कितना हो गया यहाँ पर? 2 lakh into 60 by 100 है ना. So that is equal to 1,20,000 instructions, okay. Arithmetic and logic instructions 1,20,000 instructions, इसका 60% अपन calculate किया. So 1,20,000. So एक एक instruction को execute करने के लिए how many cycles we required? So एक cycle required. So इसीलिए 20 lakhs into 60 by 100, 1,20,000 into कितने cycles की जरूरत है? 1 cycle की. So 1 cycle, okay. So next यहाँ पर दिया गया था load and store with cache hits है ना. So यहाँ पर 2 cycles की जरूरत है and 18% is there, okay. 18%. So 2 lakh instructions into 18 by 100 है ना. So कितने instructions होगा ये? यहाँ पर 3600 है ना, 36,000 का instructions आ जाएगा. 36,000 into 2 है ना, 72,000 यहाँ पर दिया, okay. And 2 lakh instructions into, and third वाला case है, that is branch instructions 12% है, and cycles we need it 4 cycles है जरूरत है. So 2 lakh into 12 by 100 into 4 है ना. So 12 to मतलब 24,000 instructions है. आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पेपर एंड पेन है तो. 24 instructions, 24,000 instructions into 4, 24,000 into 4, that is equal to 96,000 instructions है, okay. And 20 lakh, and one more last, that is equal to different instruction, that is memory reference instruction with cache miss, it is equal to 10%, but it needs more cycles है ना, 8 cycles it needs, okay. So 20,000 into 8 है ना, that is equal to into 8 by 100 है ना, 16,000 into 8 is equal to, it is equal to 1,60,000 instructions है ना. इसको कैलकुलेट करने के बाद, हाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद we will get the 1,60,000 instructions है ना. 2 lakh instructions पे अपन को 8% कैलकुलेट करेंगे. 8% को कैलकुलेट करने के बाद then we will calculate the 8 है ना, into 8 करेंगे है ना. 20,000 into 8, that is equal to 1,60,000 instructions, okay. So any calculation mistake है तो देख लीजिए आप लोग. I have calculated this, okay. So अगर कैलकुलेट होने के बाद so add it है ना, 1,20,000 plus 72,000 plus 96,000 plus 1,60,000. So these are calculating, okay. We are getting the C है ना, total cycles of instructions है ना. So is equal to 4,48,000 instructions or cycles है ना. 4,48,000 cycles total instruction को execute करने के लिए इतनी cycles की जरूरत है अपन को. समझ में आ गया ना आप लोगों को इसको कैलकुलेट करने का, ओके. सो ये कैलकुलेट C तो मिल गया अपन को. नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस है ना. इंस्ट्रक्शन IC ऑलरेडी यू नो प्रॉब्लम में दे चुके थे, दैट इज इक्वल टू 2 lakh इंस्ट्रक्शंस है ना. टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट इज इक्वल टू 2 lakh इंस्ट्रक्शंस. अभी C कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 4,48,000 इंस्ट्रक्शंस, ओके. सो दोनों को डिवाइड करिएगा, मतलब 4,48,000 बाय 2 lakhs, 2 lakhs is equal to 2.24 is the answer. So क्या हुआ, 2 point average CPI क्या हो गया, एक एक साइकिल को मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए we need at least 2.24 cycles per instruction. ये this is the average CPI, okay. So यहाँ पर there is execution time तो कैलकुलेट किया नहीं था अपन है ना. So इसीलिए MIPS को कैलकुलेट करने के लिए
So already I told MIPS को दो फॉर्मूला से IC by T into 10 to the power of 6, otherwise F by CPI into 10 to the power of 6. So यहाँ पर T तो we don't have है ना, T वैल्यू अपन निकाला नहीं है, so इसीलिए F by CPI into 10 to the power of 6 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन. So देखिएगा यहाँ पर, so MIPS is equal to F by CPI into 10 to the power of 6. So F already you know 40 into megahertz है, इसीलिए 10 to the power of 6 से मैंने mention किया. CPI is equal to 2.24, so we got it 2.24 into 10 to the power of 6 है ना. So 10 to the power of 6, 10 to the power of 6, it is a common, so cancelled it. Okay, so 40 by 2.24 है ना. कैलकुलेट करेगा आप लोग भी, अपने पास कैलकुलेटर है तो. So we got 17.86 million instructions per second है ना, million instructions per second it will execute. MIPS को वैसा कैलकुलेट किया जाएगा. ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया था, only calculate the average CPI of the above program and calculate the MIPS, ये दोनों दिया गया था, दोनों अपन कैलकुलेट कर चुके थे. ओके, सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली दिया नहीं है. ओके, सो वी नीड टू कैलकुलेट यूजिंग द इंस्ट्रक्शन मिक्स काउंट को यूज करके अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, एंड न्यूमेरिकल 2 है, तो ये तो इजी है, ऑलरेडी दे चुके, फिर भी देख लीजिए एक बार. ये 40 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर, ओके, यहाँ पर भी 40 है, was used to execute a benchmark program with the following instruction mix and clock cycle counts. ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपका काईवांग बुक है ना, उसी का पीछे है. हाँ, मतलब सेकंड चैप्टर के पीछे ये दिया गया था, एक बार देख लीजिए आप लोग. ओके, so numerical 2, 40 megahertz processor. So megahertz means it is F, so F is equal to 40 है ना, 40 into 10 to the power of 6 दिया गया. ओके, सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन काउंट तो दिया नहीं. ओके, we need to count the instruction also. ओके, इंस्ट्रक्शन काउंट also. ओके, सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिक्स क्या है, इंटीजर अरिथमेटिक 45,000 है, क्लॉक साइकिल इज इक्वल टू 1 है, and data transfer it is 32,000 instructions, मतलब 32,000, clock cycle is 2, floating point 15,000 into 2, and control transfer it is equal to 8,000 instructions, इसका clock cycle है मतलब 2 है ना. Okay, so question क्या दिया गया, so you need to calculate the MIPS, CPI and T है ना, तीनों कैलकुलेट करने का दिया गया. ओके, यहाँ एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल पे मैंने मेंशन नहीं किया क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो हमेशा तो यही क्वेश्चन मिलेगा, थ्रूपुट कैलकुलेट करो, मिप्स कैलकुलेट करो, सीपीआई कैलकुलेट करो और टी कैलकुलेट करो. ओके, इसके अलावा कोई और आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ओके, सो यहाँ पर सी है ना, टोटल इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो टोटल साइकिल्स है ना, इंस्ट्रक्शन के साइकिल. ओके, फर्स्ट इंटीजर अरिथमेटिक, कितने साइकिल की जरूरत है, 1 साइकिल. ओके, so 45,000 into 1. okay, it is 45,000 only, so इसलिए मैंने यहाँ पर 45,000 लिया. okay, and 32,000 but it takes 2 cycles है ना, बाकी सब 2 2 2 है, so 32,000 into 2. okay, 32,000 into 2 it is 64. okay, 15,000 into 2 it is also 30,000. okay, so 30,000 and 8,000 into 2 it is equal to also 16,000. okay, so सब आपके पास कैलकुलेटर तो कैलकुलेट करिएगा, 45 plus 64 plus 30 plus 16. okay, यहाँ पर so it is 1,55,000 cycles है ना, 1,55,000 cycles है ना, टोटल साइकिल्स है यहाँ पर. so we need to calculate the cycles per instruction. so कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल साइकिल्स कितना हो गया इसके बाय इन टोटल इंस्ट्रक्शंस कितना है, सो दैट इज द फॉर्मूला. ओके, सो यहाँ पर 1,55,000, बट इंस्ट्रक्शन काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इसके साइकिल्स के अलावा इसको ऐड कर दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन काउंट है ना, टोटल इंस्ट्रक्शंस है ना, सो एक एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, अरिथमेटिक, डेटा ट्रांसफर, फ्लोटिंग एंड कंट्रोल ट्रांसफर, ये चारों को ऐड कर दीजिएगा, देन वी विल गेट द इंस्ट्रक्शन काउंट. ओके, 45 plus 32 plus 15 plus 8. okay, so 45 plus 32 it is equal to 77. 77 plus
It is 15 plus 8, it is 23. 77 plus 23, it is equal to 1 lakh instructions. Okay, so total 1 lakh instructions and total 1,55,000 cycles. Okay, so average CPI is equal to 1,55,000 by 1 lakh instructions. It is equal to 1 lakh 1.55. Okay, so 1.55 cycles per instructions at least it needs. Okay, average CPI है 1.55. Okay, so MIPS को calculate करना है. Always we know the MIPS means CPI जान रहे हैं, मतलब उनको जानते हैं. Okay, so MIPS is equal to F by CPI into 10 to the power of 6. Okay, so 40F is, you know already, 40 into 10 to the power of 6. Okay, by CPI is equal to 1.55 into 10 to the power of 6. ये 10 to the power of 6 10 to the common है, so cancel हो गया. So 40 by 1.55 calculated 25.8 million instructions per second it will execute. Okay, so time अपन को मतलब execute करने का है ना, 1 सेकंड में कितना execute हो रहे है ना, t is equal to है ना how many. so देखिएगा एक प्रोग्राम को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी टाइम की जरूरत पड़ रहा है. सो टी इज इक्वल टू ऑलरेडी द फर्स्ट फॉर्मूला आई टोल्ड यू, दैट इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन काउंट इनटू CPI इनटू 1 by F, that is equal to instruction count is equal to 1 lakh है ना, I know we know already this is 1 lakh. Okay, into CPI that is equal to 1.55. okay, and by and कितना मतलब 1 by F है ना, into 1 है, 1 का कोई जरूरत नहीं. F means that is equal to 40 into 10 to the power of 6. 40 into 10 to the power of 6. Okay, so here I have converted this 1 lakh into 0.1 है ना, 0.1 into 10 to the power of 6 में. आप लोग जानते हैं ना फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी CSO में हो चुका था. सो इसको कन्वर्ट मतलब 0.1 into 10 to the power of 6 में कन्वर्ट किया into 1.55 by 40 into 10 to the power of 6. कैंसिल दोनों. सो 0.1 into 1.55, ये थोड़ा गलत आ गया, 0.1 into 1.55 by 40. इसको कैलकुलेट करिएगा, दैट इज इक्वल टू 0.003876 नैनो सेकंड्स ये आ गया. सो इसको मिली सेकंड्स में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मिली सेकंड्स में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द टोटल, मतलब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, 0.1 into 1.55 इसको कैलकुलेट करिएगा आप लोग. सो यहाँ पर 1.55 के अलावा 150 मतलब कुछ और आंसर आ जाएगा. ओके, बाय 40 इज इक्वल टू 0.003876 है ना, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है. सो दिस इज द आंसर टी. सपोज आपको थ्रूपुट भी कैंसिल मतलब कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, 1 by t दैट इज इक्वल टू 1 by 0.003876 इज इक्वल टू कैलकुलेट करिएगा कितना आ जाएगा. So that is per second how many programs it will execute. पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने कितने सेकंड्स चाहिए, 1 सेकंड में कितने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ओके, दैट इज द टी एंड थ्रूपुट. थ्रूपुट इज द सिस्टम थ्रूपुट है ना, एक सिस्टम का थ्रूपुट से अपना स्पीड, उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द 2 न्यूमेरिकल्स एग्जाम में मतलब आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द टर्म्स, आप याद रखना, थ्रूपुट, MIPS, CPI and instruction count and C है ना, ये कैलकुलेट करने का तरीका है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टी प्रोसेसर्स है ना. सो आपने ये टर्म सुना होगा मल्टी प्रोसेसर है ना. मल्टी प्रोसेसर मीन्स एक से ज्यादा प्रोसेसर अपने सिस्टम में है, देन इट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर है ना. सो मल्टी प्रोसेसर्स इज द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स द CPUs and IO processors. IO processor के क्या काम है बेटा? Suppose if you want to communicate with the main memory to secondary memory, auxiliary memory के साथ communicate करना है तो डायरेक्ट communication होता नहीं है. ओके, सो IO के थ्रू होता है. ओके, इसीलिए so multiprocessor में CPUs, IOPs connected to input output devices and memory unit के साथ connect हो गया. So separate, it will be partitioned into a number of separate modules है ना.
ऐसे डिफरेंट प्रोसेसर्स है, डिफरेंट आईओ मतलब सीपीयू से, डिफरेंट आईओ प्रोसेसर्स है, डिफरेंट के साथ मतलब मेमोरी यूनिट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तो देन इट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर्स, है ना. सो मल्टी प्रोसेसर्स are classified as multiple instruction stream, multiple data stream. We already studied about the Flint's taxonomy, that is the last classification, that is MIMD classification, multiple instruction and multiple data stream. So इसी में classify होता है, okay. So what is the difference between multi-processors and multi-computers, है ना, important है. Multi-processor system is a simply computer that has more than one CPU on its motherboard. It is a multi-processor, है ना. Multi-processor uses two or more central processing units within a single computer system. But multi-computer is made up of several computers. It is a computer architecture has its own memory, है ना. सभी के पास यहाँ पर क्या है, shared memory के साथ होता है, but यहाँ पर क्या, its own, each processor has its own memory rather than multiple processors has a shared memory. Shared memory नहीं होता है multi computer पे. That is the difference between the multi processor and multi computer. So how multi processors are classified, है ना. Multi processors are classified two types, tightly coupled multiprocessors and loosely coupled multiprocessors. आप लोगों को 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. ये लूजली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर्स इज द एग्जांपल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए एग्जांपल है, ओके. सो ये टाइटली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर एंड लूजली कपल्ड, देयर आर द टू क्लासिफिकेशंस मेनली, है ना. सो टाइटली कपल्ड is sharing the main memory and peripherals in order to simultaneously process the programs, है ना. एक्चुअली टाइटली कपल्ड में क्या होता है, मतलब शेयर्ड मेमोरी सिस्टम होता है. टाइटली कपल्ड इसीलिए कहा गया था, इसमें शेयरिंग विद इज इन हाई डिग्री, है ना. ज्यादा शेयरिंग होता है, मतलब कॉमन शेयर्ड मेमोरी के साथ ये अपना पूरा ऑपरेशन ये सब मेमोरी के साथ, मतलब कॉमन मेमोरी होता है उसके साथ शेयर हो जाएंगे. सो इसीलिए इट इज कॉल्ड टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर, है ना. लूजली कपल्ड में क्या है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, है ना. इसका एक बार आप देख लीजिएगा, लाइनेक्स बियोवुल्फ क्लस्टर एक एग्जांपल है इसका. सिमुलेशंस वगैरह इसमें बहुत सारे जगह पर यूज होता है, सर्च करिएगा आप लोग, ओके. सो ये क्या है, इट इज अ फीलिंग ऑफ, मतलब अपन को ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपन को मेमोरी शेयर कर रहे ऐसा फीलिंग नहीं आ जाएगा, विच विल बी शेयर्ड विद मेमोरी वेरी हाई नेटवर्क, मतलब उसके साथ सॉकेट के साथ इट विल बी शेयर, इसीलिए इजीली शेयर होता है. वहां जैसा थोड़ा सा हाई डिग्री शेयरिंग नहीं होता है ना, लूजली कपल्ड, है ना. वेराज ज्यादा मेमोरी कहाँ रिक्वायर्ड है वहां ज्यादा, मतलब वैसा शेयरिंग हो जाएगा, इसीलिए दिस इज कॉल्ड loosely coupled multiprocessor. It is also known as distributed memory, okay. So parallel by shared I already told, that is multiprocessors you shared common memory मतलब होता है. So उसी में अपन को ये मतलब it is classified into 3 categories. UMA, that is equal to यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, है ना. हर मेमोरी मतलब हर प्रोसेसर को इक्वली मेमोरी दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस. whereas NUMA it is a non uniform memory access होता है, मतलब यहाँ पर वैसा नहीं होता इक्वली शेयर होता है, ऐसा नहीं होता है, that is non uniform memory access. And cache only memory architecture, that is COMA, okay. cache memory which will be very डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये एग्जांपल हो सकता है कोमा, दैट इज कैश ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर, ओके. सो ये यूमा मल्टी प्रोसेसर मॉडल वैसा होता है, ये सिस्टम, है ना. ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. एक क्रॉस बार मल्टी स्टेज नेटवर्क्स का एग्जांपल क्या है, इस पे क्यूब नेटवर्क, मल्टी पोर्ट, क्रॉस बार स्विच, मतलब बहुत सारे मतलब यूज करके सिस्टम को इंटरकनेक्ट
कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर से, है ना। इसके साथ एक कनेक्शन होगा अपना प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर यानी मतलब ये डिफरेंट प्रोसेसर्स है, एक आईओ प्रोसेसर है एंड इसका शेयर्ड मेमोरी, है ना, इक्वली, मतलब शेयर्ड मेमोरी 1 अप टू कितने प्रोसेसर से उतना शेयर्ड मेमोरी होगा, है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इट विल शेयर द, है ना, दिस इज द इंटरकनेक्शन, मतलब शेयर करेंगे, है ना, एक एक प्रोसेसर के लिए एक एक मेमोरी, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मल्टीपल, मतलब यूनिफॉर्म मल्टी प्रोसेसर मेमोरी एक्सेस है, सॉरी यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस कहते हैं, इट यूमा मल्टी प्रोसेसर इट इज, ओके। And physical memory is uniformly shared by all the processors. All processors have equal access time to all memory words, so it is called uniform memory access. Peripherals are also shared in some fashion, that means IO processor share कर रहे हैं ना, इसीलिए also called tightly coupled systems due to the high degree of resource sharing, है ना, resource sharing थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए इसको कहते हैं tightly coupled, okay। next है and this is equal to, मतलब एक न्यूमा, है ना, न्यूमा प्रोसेसर में क्या है, एक्सेस टाइम वेरियस, है ना, विद द लोकेशन ऑफ द मेमोरी वर्ड, है ना, हर एक मेमोरी नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, हर एक प्रोसेसर के लिए अपना लोकल मेमोरी होता है, एक लोकल मेमोरी और लोकल मेमोरी, है ना, so access time varies with the location of the memory word, है ना, shared memory is physically distributed to all processors, okay, and global address space, है ना, forms by collection of all local memories that is accessible by all processors, है ना, एक बार लोकल अपना मेमोरी के साथ भी अपना कनेक्शन होता है, इसके साथ एक और शेयर्ड मेमोरी भी होगा, मतलब इसको कलेक्शन में, सो इसको सभी प्रोसेसर्स एक बार शेयर कर सकते हैं। अगर लोकल मेमोरी के साथ है तो फास्टर एक्सेस होता है विद लोकल प्रोसेसर, अगर थोड़ा सा लोकल मतलब ये ग्लोबल एड्रेस स्पेस शेयर करना चाहते तो रिमोट मेमोरी के साथ स्लो एक्सेस होता है, ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मॉडल, है ना, हर एक प्रोसेसर के साथ एक लोकल मेमोरी एंड इट विल बी वैरिड, है ना, टाइम टू टाइम इट विल बी वैरिड एंड एक कॉमन मेमोरी भी होता है, मतलब इसका कलेक्शन होके वहां पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस का न्यूमा मॉडल है एंड दिस इज कोमा, है ना, कैश ओनली मल्टी प्रोसेसर मॉडल, है ना, सो यहाँ पर इंटरकनेक्शन नेटवर्क के साथ हर एक प्रोसेसर के साथ एक कैश मेमोरी होता है, एक डायरेक्टरी भी होता है, ओके, है ना, एक प्रोसेसर कैश एंड डायरेक्टरी, है ना, कितने प्रोसेसर्स होगा एक, so distributed main memory converted to cache, है ना, cache from the global address space, यहाँ पर remote cache access by distributed cache directories, है ना, हर एक कैश के लिए अपना खुद का डायरेक्टरी होगा, इट विल बी कनेक्टेड, है ना, दिस इज कॉल्ड कोमा, दिस इज आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, वो दोनों फर्स्ट प्रोसेसर्स दैट वाज हाईली मतलब टाइटली कपल्ड के अंदर आ जाएगा, ये लूजली कपल्ड के अंदर आ जाएगा मल्टी प्रोसेसर्स में, सो दीज आर द 3 डिफरेंट प्रोसेसर मॉडल्स है, न्यूमा, कोमा एंड यूमा, ये मल्टी प्रोसेसर्स का डिफरेंट टाइप्स है, ओके, so today thank you, so today we covered numerical system attribute performances क्या क्या है एंड उसके अंदर न्यूमेरिकल्स 2 न्यूमेरिकल्स को देख चुके थे एंड इसके बाद व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर मल्टी कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है एंड मल्टी प्रोसेसर में क्लासिफिकेशंस क्या है, लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड, इसके बाद लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेस अगेन इट विल बी क्लासिफाइड इनटू, मतलब अकॉर्डिंग टू द मेमोरी एक्सेस इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स है, यूमा, न्यूमा एंड कोमा, so uniform memory access, non-uniform memory access and cache only memory architecture है, so cache only memory architecture ये distributed system के अंदर example है, okay, so this we have covered in the next class, we will cover the parallelism क्या होता है and resource dependency, Burness Train conditions क्या है ना, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या होगा, इसका एक लेक्चर अपन करेंगे, ओके, थैंक यू।